Initial recording. Over to you. Over and now. All right. Thank you so much, Salman. Jazakallah, Jazakallah. Love you so much. Have a blast over there. And Assalamu alaikum, everybody. Once again, looking forward to having a good time with you guys. All right. So, welcome to work. Welcome to work. Welcome to work, everybody. Welcome to work. Thank you so much for joining us in this. It's kind of a hard times over here due to the pandemic all over the world, actually. But we all are lucky that we have an opportunity to work with a company and that we can earn for our families and for ourselves. So I'll leave it there. Just like Salman said, I started over here 2 years ago as a CSR. Just going to let you know a little bit about myself, and then we'll start with the orientation. So I started over here as a CSR, and after 2 months, I was shifted to HR team as I was studying in ComSets. I was doing BBA. So I went to HR department. I worked there for 8 months, and for 8 to 10 months. And after that, I was shifted to BI team. And it's been a year in BI team. So that's how my last 2 years were. And we haven't, taken any days off due to the pandemic. We have kept this company going as an overall, like everybody in the leadership, everybody in the support. They have not taken any leave throughout this pandemic, and we have made sure that we provide opportunities to the people. So, guys, वैसे मुझे बता दें, like शोर ज़्यादा तो नहीं आ रहा. You guys are able to hear me, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, loud and clear. All Sir, we clear, can hear you. Yes, sir. Yes, sir, we No can. problem, sir. Yes. Awesome. So I'm gonna start with a few simple things. Now, why are we having this orientation right now? What's the purpose of this orientation? Now, the purpose of this orientation is to let you guys know. मैं उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके बोलता रहूँगा, ठीक है, ताकि सबको समझ आ जाए. इसका मकसद ये है to let you guys know about the reporting of our company. Now, you guys will be receiving a couple of reports from our team. You guys can reach us out as previously there was an email on the initial slide. But in the end, I'm going to let you guys note that down so that in the future, if you have any problems, you guys can reach us out as well. Now, the purpose of this orientation to make sure that you guys are familiar with the reporting style, how the reports are, what are the payouts nowadays, and how you guys can track yourself. In case of any queries, obviously Team BI will be here for you for everything that you see on your screen right now. I'm going to keep this session a very friendly session. You guys can ask me any questions that you have related to BI. And in case, try to ask questions related to what you see on your screen. And if you miss that, I'll give you a chance to ask me questions in the end as well. Okay? So, BI means. All right. Business intelligence. Okay, thanks, sir. All right. Now, let's start with the analyzing CSR's performance. So as you guys are working as customer sales representatives, our job is to make sure that we track everything that you guys do. If it's attendance, whether you guys coming in on time, आप time पे आ रहे हैं, time पे नहीं आ रहे हैं, उसका track record रखना. So we do send you a daily attendance report. I'm going to show that how that looks. Then we have active time, कि आप कितनी देर के लिए dialing करते हैं. Pause time, आप breaks कितने time के लिए लेते हैं. Talk time, आप कितनी देर customers से बात करते हैं. And the number of calls that you guys take, कि आप कितनी calls एक दिन में लेते हैं. Apart from that, कि आपकी customers की quality कैसी है, आपकी total के आपके जो customer की quality है, वो आगे जाके जब आप license specialist के पास transfer करते हैं, वो कितनी देर जाके बात करता है, आया वो sales होती है, नहीं होती, सारी चीज़ें वो agent productivity के ज़िम्मे में आती है.
Then we have bonuses, obviously one of the most important thing. That's the only thing that you guys are working for, the bonus, the money. So we do keep track of that. We share that with you guys and make sure that you guys know each and everything regarding the bonuses, regarding the deductions, and obviously your payroll that is shared in the end of the month with you guys. All right. Now, what we do on daily basis is our job is to make sure that we share everything with you guys. At the same time, we share these reports with the management so they can make decisions about you and the future of the company. All right? यहाँ तक सब clear है? Yes, sir. Yes, sir. Clear, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All clear. Awesome. Yes, sir, it's clear. All right. All right. So let me start with the format of this report. ये रिपोर्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास जो फ्यूचर में इस तरह की रिपोर्ट आए तो यू गाइस आर एबल टू रीड दैट रिपोर्ट कि ये रिपोर्ट क्या हमें बताने की कोशिश कर रही है. आपके टीम और टीम लीडर का नाम लिखा होता है, डेट लिखा होता है टॉप पे. उसके बाद फर्स्ट कॉलम में आपका नाम होता है. उसके बाद एक्टिव टाइम होता है कि आपने कितनी देर डायलर पे डायलिंग की है. टॉक टाइम आपने कितनी देर कस्टमर्स के साथ बात की है. आइडल टाइम. अच्छा, आइडल टाइम क्या होता है बेसिकली? तो आइडल टाइम वो टाइम होता है जब आप लोग एक्टिव होते हो लेकिन आपको कॉल्स नहीं आती. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉल फिनिश कर लेते हो और सेकंड कॉल में जा रहे हो तो उसके बीच में जो छोटा सा वक्फा आता है उसको आइडल टाइम कहते हैं. तो ओवरऑल द डे, अक्रॉस द डे, जितना भी टाइम आपका उस तरह गुजरेगा वेटिंग में, वो आपका आइडल टाइम होगा. ठीक है. पॉज टाइम वो टाइम होता है जब आप लोग ब्रेक्स पे जाते हैं. कॉल्स, जब आप जितनी भी आप कॉल्स दिन में लेते हैं तो वो आपकी कॉल्स में आ जाती हैं. नाउ क्लोजर टॉक टाइम मिनट्स क्या हैं? जब आप लोग सेल्स करते हो, ट्रांसफर्स करते हो, तो आप लोग के जो कस्टमर्स आगे जाके लाइसेंस स्पेशलिस्ट के साथ जितनी देर बात करते हैं वो क्लोजर टॉक टाइम मिनट्स में आ जाता है. फॉर एग्जांपल, पहले बंदे की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर उसने 4 बिलेबल्स किए हैं तो 4 बंदों ने ऑन एवरेज लाइसेंस स्पेशलिस्ट से 20 मिनट की बात की है. समझ गए? उसके बाद है हमारे ट्रांसफर अटेम्प्ट्स, ट्रांसफर्स एंड बिलेबल्स. ट्रांसफर अटेम्प्ट, ट्रांसफर्स एंड बिलेबल्स, ये तीन स्टेजेस हैं एक ट्रांसफर की. पहला स्टेज क्या है कि आप कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं ट्रांसफर करने की. सेकंड, आपकी ट्रांसफर सक्सेसफुल होती है, वेरीफायर के पास जाती है आपकी ट्रांसफर, ये ट्रांसफर हो गया. ठीक है, आपने सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया है. अब ये बिलेबल ट्रांसफर कब बनेगी? ये बिलेबल ट्रांसफर तब बनेगी जब आप लोगों का ये वाला कस्टमर 120 सेकंड के लिए लाइसेंस्ड स्पेशलिस्ट के साथ बात करेगा. तो आपका काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. ठीक है, आपको एक बिलेबल मिल जाएगा, आपकी सेल हो गई, और जो भी इस सेल का बोनस होगा वो आपको मिलेगा. Then we have transfer conversion, wallet conversion and LPD. ट्रांसफर कन्वर्जन वो होता है कि फॉर एग्जांपल आप कितनी अटेम्प्ट्स में से कितनी ट्रांसफर कर रहे हो तो वो परसेंटेज आपको बताता है, और ट्रांसफर में से आप कितनी बिलेबल्स करते हो वो आपको वैलेट कन्वर्जन बताता है. LPD मीन्स लीड्स पर डे. अभी यहाँ पे लीड्स पर डे में जो वैल्यू लिखी गई है वो वही है जो आपकी बिलेबल की है, लेकिन अगर हम वीकली में जाएंगे तो वीकली में इट विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज, एंड आपको एवरेज नज़र आ जाएगा कि आपने वीक में ऑन एवरेज रोजाना कितनी सेल्स की है. नाउ I'll open up to questions if you guys have any question. कोई किसी को कोई चीज समझना है, one by one. I have a question, sir. पूछें. सर ये जो ग्रुप बना हुआ है सर, ये किस बेस पे बनता है और मैक्सिमम कितने बंदे हो सकते हैं ग्रुप में और मिनिमम कितने होते हैं? जरूरी नहीं है कितने हो कैसे हो. एक टीम बनता है. जब आप लोग ग्रेजुएट करेंगे ट्रेनिंग, एक टीम बन जाती है और आप लोग फिर उस टीम का हिस्सा होते हैं.
जरूरी नहीं है कितना हो कैसा हो। बिलेबल्स क्या होते हैं? अच्छा, बिलेबल्स वो ट्रांसफर्स होती हैं जब आप लोग ट्रांसफर कर लेते हो वेरीफायर के पास, वेरीफायर वेरिफिकेशन करके लाइसेंस्ड स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है। ठीक है, तो जब ये कस्टमर लाइसेंस स्पेशलिस्ट के पास पहुंच के 120 सेकंड पूरे कर लेता है तो आपकी नॉर्मल ट्रांसफर बिलेबल ट्रांसफर में कन्वर्ट हो जाती है। और बिलेबल ट्रांसफर वो ट्रांसफर्स होते हैं जिनके आपको पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग सिर्फ वेरीफायर को ट्रांसफर कर रहे हैं और कस्टमर क्वालिफाई नहीं कर रहा आगे जाने के लिए, तो फिर आपका ये बिलेबल ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर ये आगे जाके लाइसेंस स्पेशलिस्ट के साथ बात करता है, 120 सेकंड कंप्लीट करता है, तो तब ये बिलेबल होगा। जी फैसल पूछे। Sir, in offer letter, you fix a certain amount of billable. Like if we did 16 billable, so we got that amount of bonuses. If we increase our billable, सर लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बिलेबल ट्रांसफर क्या होती है और रिपोर्ट में कैसे दिखती है। जो हमारी वो है उसकी अमाउंट है, कितनी अमाउंट मिलेगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फोकस ऑन व्हाट इज showing to you guys on the screen. Just give me 1 minute to get back to you guys. okay, sir. Yes, Shahid Hassan, go ahead and ask. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले ट्रांसफर होती है फिर बिल बनता है कि पहले बिल बनता है फिर ट्रांसफर होती है? नहीं, पहले ट्रांसफर होती है उसके बाद बिलेबल बनता है। ठीक है, पहले आप अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट के बाद आपकी अटेम्प्ट सक्सेसफुल होकर वेरीफायर के पास जाती है, वेरीफायर आपका ट्रांसफर वेरीफाई करके बिलेबल करने के लिए, बिलेबल होने के लिए फॉरवर्ड कर देता है। तो आगे जाके जब वो कस्टमर 120 सेकंड के लिए स्टे करेगा आपका बिलेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। Khalil bhai, जी, we guys will get paid on billables or on transfers? yes, you guys will be getting paid on the billable number only. All right. ठीक I have a है, question, There sir. are yes, go ahead, please ask. Sir, the active time, can the part-timers work overtime? Like if their shift is 6 hours, but one Yes, chooses to work for 8 hours? they can, but as I said earlier, आपको स्क्रीन पे जो चीजें नजर आ रही हैं उसके हवाले से क्वेश्चंस करें, अगर नहीं है, so that we can move on to the other part and focus on the important things. Please closer talk time आखिरी दफा बता दें। क्लोजर टॉक टाइम वो टॉक टाइम होता है जब आपके ट्रांसफर्स, आपके कस्टमर्स आगे जाके 120 सेकंड के लिए लाइसेंस्ड स्पेशलिस्ट के साथ बात करेंगे तो जाके एक बिलेबल बनता है 120 सेकंड पे। लेकिन कितनी देर वो बात करता है वो आपका क्लोजर टॉक टाइम होता है। ठीक हो गया सर। ठीक है, Sir, what about transfer attempts? हाँ, ट्रांसफर अटेम्प्ट वो होता है जब आप लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करते हो। लेट मी रिपीट दिस फॉर वन एंड लास्ट टाइम ओनली, सारे गौर से सुना। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सबको आवाज आ रही है ना? ये ना हो कि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस वन मोर टाइम। क्लोजर टॉक टाइम वो टॉक टाइम होता है जब आप लोग एक ट्रांसफर कर लेते हो और ट्रांसफर के बाद वो कस्टमर जाके लाइसेंस स्पेशलिस्ट के साथ कितनी देर बात करता है। ठीक है, ये हमारा क्लोजर टॉक टाइम हो गया। ट्रांसफर अटेम्प्ट आपका वो होता है, नाम से जाहिर है कि अटेम्प्ट, आप कोशिश करते हो एक ट्रांसफर करने की। ठीक है, जब ये अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुल होता है तो वो एक ट्रांसफर बन जाता है। ट्रांसफर में क्या होता है, वेरीफायर आपका दिया गया कस्टमर वेरीफाई करके लाइसेंस स्पेशलिस्ट को फॉरवर्ड करता है। जैसे ही फॉरवर्ड करता है और 120 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं तो वो बिलेबल बन जाती है। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. All right. Yes, sir. yes, sir.
ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे अभी नजर सर आ ये रहा है, लास्ट वाला TRX जो है ये क्या है? कौन सा TRX? ट्रांसफर। सर ये TRX is basically लास्ट पे जो कॉलम के सबसे एंड पे है जिधर 50% लिखा है, 40%, 51%। ठीक है, एक मिनट मैं दोबारा ये समझा देता हूँ आपको। TRX इज शॉर्ट फॉर ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर कन्वर्जन क्या है? जो परसेंटेजेस लिखी हुई है दोनों मैं बता देता हूँ दोबारा। ट्रांसफर कन्वर्जन में ये होता है कि आप कितने अटेम्प्ट्स में से कितने ट्रांसफर्स करते हो, ये आपको परसेंटेज बता रहे हैं। और वैलिड कन्वर्जन में जो परसेंटेज लिखी गई है वो आपको ये बता रहा है कि कितने ट्रांसफर्स में से आपकी कितनी बिलेबल हो रही है, तो आपकी वैलिड कन्वर्जन कितनी है, ठीक है। आइडियल टाइम। यस सर। आइडल टाइम आपका वो टाइम होता है जिसमें आप वेट कर रहे होते हो कॉल का। आपने फॉर एग्जांपल एक कॉल अटेंड कर ली है और उसके बाद आप दूसरे कॉल की तरफ जब जाओगे तो उसके दरमियान जो छोटा सा वक्फा होता है 10, 15, 20, 30 सेकंड का, उसको आइडल टाइम कहते हैं, ठीक है। Okay, sir. Thank you. Sir, what is the difference between billables and leads per day? All right. Billables and leads per day is the same thing. Why leads are in points like 4.2, 3.6? All right. याद है मैंने आपको बताया था कि LPD वीक्स में जाके चेंज हो जाती है। उसकी वजह क्या है? LPD का कॉलम यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि आपने वीक 4 में या वीक 3 में ऑन एवरेज रोजाना के हिसाब से कितनी सेल्स की है। तो 4.3, 5.3, 4.0, 3.3 ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि पिछले 5 दिनों में आपका एवरेज परफॉर्मेंस, आपकी एवरेज सेल्स ये रही हैं। ओके। या ठीक है। ऑलराइट, नाउ this is a monthly sample report. Let me give you a little bit overview about के ये रिपोर्ट आपके पास किस तरह आती है। So first, आपके पास एक दिन का रिपोर्ट आता है जो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 7 या 8 दिसंबर को डायलिंग की है तो आपके पास वो रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको करंट वीक की आ जाएगी, उसके बाद आपको प्रीवियस वीक की आ जाएगी, उसके बाद आपको उससे प्रीवियस वीक की आ जाएगी, और उसके बाद करंट मंथ की, और उसके बाद प्रीवियस वीक्स की। तो आप लोग इसी तरह पूरी डिटेल्स आपके पास एक ही रिपोर्ट में आती रहेंगी, ठीक है। 1 by 1 मतलब ऊपर से नीचे तक। ये सबको समझ आ गई है? Yes, sir. ठीक है, that's amazing. So now let's go to the one of the most important topic of the day, that is base earning plan. अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात बता दूं। मैं आप लोगों के साथ 2 प्लान्स शेयर करूंगा, बेस अर्निंग प्लान एंड कमीशन अर्निंग प्लान, ठीक है। तो जो लोग बेस पे होंगे उनके लिए जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सारी डिटेल्स ये होगी। जो लोग कमीशन पे होंगे तो उनके लिए डिटेल्स में इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कमीशन पे या बेस पे कैसे होंगे, उससे पहले ये सारे गौर से सुन ले, कान खोल के सुन ले कि जैसे ही आप लोग ग्रेजुएट करेंगे तो आप लोगों के पहले 5 दिन की जो डायलिंग होगी वो डिसाइड करेगी कि आया आप लोग बेस पे जाएंगे या कमीशन पे जाएंगे। मैं दोबारा बताता हूं, आपके ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही आप लोग ट्रेनिंग से निकलोगे उसके पहले 5 दिनों में आपको बताया जाएगा कि आया आप लोग बेस प्लान पे जा रहे हो या आप कमीशन प्लान पे जा रहे हो। ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Awesome. sir. Got it. Yes, sir. पहले 5 दिनों में
क्या चीज डिसाइड करेगी कि आप लोग बेस पे जा रहे हो या कमीशन पे जा रहे हो? पहले 5 दिनों में आपको 4 सेल्स करनी होंगी टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग ऑन बेस और कमीशन। अगर आप लोग 4 कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग बेस पे जाएंगे, अगर आप लोग 4 कंप्लीट नहीं करते तो आप लोग कमीशन पे जाएंगे। ये सबको क्लियर हो गया? सर ये फर्स्ट पर डे है। एक मिनट, एक सवाल पूछें एक एक करके। सर पर डे 4 करनी होगी या 5 दिनों में 4 करनी नहीं, होगी? 5 दिनों में 4 करनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 5 दिनों में आपके पास टारगेट होगा कि आप लोग 4 सेल्स करो, और जो लोग 4 सेल्स कर लेंगे वो लोग बेस प्लान पे जाएंगे, और जो लोग 4 नहीं कर पाएंगे वो लोग कमीशन पे जाएंगे। सबको समझ आ गई? Yes, सेल अच्छा, एक और चीज जी पूछे। सर सेल उस पर डिपेंड करती है, लाइक जब लाइसेंस एजेंट उसको कर देंगे, सेल हो जाएगी, देन हमारा अकाउंट होगा वो सेल। नहीं, मैं अभी तक आप सुन रही थी? यस सर, मैं सुन रही थी। लाइक हमने ट्रांसफर करनी है उधर, हमारी सेल कब पता चलेगी? लाइक जब वो सेल हो जाएगा आफ्टर द लाइसेंस एजेंट। एक मिनट, मैं अभी जो बता रहा था कि जब आप ट्रांसफर कर लेते हो और 120 सेकंड के लिए एक कस्टमर लाइसेंस स्पेशलिस्ट से बात करेगा तो आपकी सेल हो गई, ठीक है? यस, ठीक है। इट डजंट मीन कि आपका कस्टमर जब 120 सेकंड के लिए लाइसेंस स्पेशलिस्ट के पास रहेगा तो आपका मतलब सेल हो गया, ठीक है? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर क्या हमें एट द स्पॉट पता चल जाएगा कि ये हमारी सेल कंफर्म नहीं, हो गई आपको है? नहीं पता चलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट डे पता चलेगा? जी, आपको नेक्स्ट डे पता चलेगा, या इट विल टेक अराउंड 12 to 14 hours। ओके सर, सही है? सो लेट मी जी पूछें। हम 4-5 डेज में हम 4 सेल करते हैं और बाकी पूरा मंथ अगर हम कोई भी सेल नहीं कर पाते तो तब भी हम बेस पे रहेंगे। वो बात की बात है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। वो प्रोबेशन पीरियड का जरा बताएं। ओके सर। सर वो मुझे नहीं पता सर, वो एचआर से आपको पूछना पड़ेगा। सर इधर जो ये पार्ट टाइम के लिए जो प्लान लिखा है, इज इट फॉर द प्रोबेशन और विदाउट प्रोबेशन? सर ये आपके, एक मिनट मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, ठीक है? कि पहले 5 दिनों में जब आप 4 सेल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप बेस प्लेन पे काम करेंगे या कमीशन पे काम करेंगे, ठीक है? समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. एक Yes, जिस sir. बंदे ने सवाल पूछे उससे पूछे, यस, ठीक है? उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आया आप बेस पे रहते हो या कमीशन पे रहते हो, वंस यू स्टार्ट वर्किंग एंड वंस यू स्टार्ट मेकिंग सेल्स। अगर आप सेल्स नहीं करेंगे तो आप कमीशन पे रहेंगे, ठीक है? नाउ सेल्स करते हैं तो फिर मुझे पता नहीं, मुझे तो नहीं पता यार, मैंने अभी बता तो दिया है, ओके सर। ठीक है? हाँ, सर एक मिनट, लेट्स गेट टू दी प्लान। दोनों प्लान डिस्कस करते हैं, उसके बाद सवाल में सारे सवाल के जवाब आपको दूंगा, ठीक है? सो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है फुल टाइम और पार्ट टाइम, दोनों का टियर 1 पढ़ लें, दोनों का टियर 1 पढ़ लें। फॉर अ फुल टाइमर आपको लाजमी है क्वालिफाई करने के लिए, जो मैंने आपको पहले बोला है ना कि पहले 5 दिनों में आपकी 4 सेल्स है, उसके अलावा, ठीक है, वो सेल्स इसमें काउंट होंगी, वो इससे अलहदा नहीं होंगी, वो सेल्स इसी में शामिल होंगी। तो पूरे महीने में एक पार्ट टाइमर के लिए 16 सेल्स और एक फुल टाइमर के लिए 22 सेल्स लाजमी है कि वो कमीशन पे स्टे करें, ठीक है? कि वो इस प्लान पे, बेस प्लान पे स्टे करें। उसके लिए लाजमी है कि एक फुल टाइमर 22 सेल्स करे और एक पार्ट टाइमर 16 सेल्स करें। सर इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? विद इन अ मंथ? पूरा महीना है, पूरा महीना है, ठीक है? एक पार्ट टाइमर के लिए 16 लाजमी है कि वो उसको बेस
प्लान मिल सकता है, और एक फुल टाइमर के लिए लाजमी है कि वो 22 सेल्स करें ताकि वो बेस प्लान पे रहे। नाउ आपके पास टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में गोल्स दिए गए हैं जो कि आप अचीव कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर 22 और 16 सेल्स। अगर आप पार्ट टाइमर हैं या फुल टाइमर हैं तो जो 16 या 22 सेल्स आपके लिए लाजमी हैं, उसके अलावा जब आप बाकी सेल्स फॉर एग्जांपल 37 या 52 करोगे तो उस पे आपको बोनस मिलता है। कौन सा बोनस मिलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गोल्स के बाद वाले कॉलम में आपको कॉलम नजर आ रहा होगा पे आउट पर बिलेबल। ये आपको बताता है कि जितनी बिलेबल्स आप करते हो उसके कितने पैसे बने। हर बिलेबल का आपको 200 रुपया मिलता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 22 करते हो तो पर बिलेबल आपको 4400 रुपया मिलता है। अगर आप 52 करते हो तो आपको 10,400 मिलेगा। उसके बाद वाले कॉलम में आपको नजर आ रहा है बेस सैलरी। तो जब आप लोग 22 का टारगेट मीट करोगे फॉर अ फुल टाइमर और 16 का टारगेट मीट करोगे फॉर अ पार्ट टाइमर, तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 7,500। फॉर अ फुल टाइमर अटेंडेंस बोनस बेस वाले कॉलम के बाद जहां पे 5,000 लिखा हुआ है, ये आपका अटेंडेंस बोनस है। अगर आप पूरा महीना कोई छुट्टी नहीं करते तो आपका अटेंडेंस बोनस 500 होगा, 5,000 होगा, और फॉर अ पार्ट टाइमर वो 2,500 होगा। उसके बाद वाले कॉलम में आपको नजर आ रहा है एलईजे स्पेशल। नाउ जो लोग 22 अचीव करेंगे, चाहे वो फुल टाइमर हो या पार्ट टाइमर हो, उसको 2,000 का बोनस मिलेगा। जो लोग 37 अचीव करेंगे उनको 4,000 का बोनस मिलेगा, और जो लोग 52 अचीव करेंगे उनको 6,000 का बोनस मिलेगा। ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, सबको समझ आ गया पूरा प्लान के पूरा प्लान कैसे काम करता है? यस यस सर। यस सर। लेकिन सर यहाँ पर प्रोबेशन मेंशन sir. नहीं है, और हमें जो ऑफर लेटर मिला था उसमें प्रोबेशन आपकी फर्स्ट 60 डेज कंपनी में आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। ये एचआर ओरिएंटेशन में आपको बता दिया गया था। एक क्वेश्चन है सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर नहीं बताया था इसलिए पूछ रहा हूँ। सर अगर हमारे बिलेबल 16 से कम होते हैं तो फिर आप कमीशन पे जाएंगी। ओके थैंक यू। सर, ये जो पे आउट और बिलेबल्स का इसमें कॉलम है, ये 3,200 पर बिलेबल है या 16 बिलेबल्स की है? ऑलराइट, ये 16 बिलेबल्स का टोटल है, ठीक है। कि जब आपने 16 कर लिए तो उसके टोटल आपको 3,200 मिलेंगे। और सर हमें कमीशन पर सेल क्या मिलेगा? मैंने आपको पहले भी बताया, वो मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये समझ आ गई? यस सर। एक चीज ठीक है। कंफर्म करनी थी कि जैसे कि बेसिक हमारा यानी दो अलग चीजें, इफ आई एम करेक्ट, अटेंडेंस का हमें 5,000 मिलेगा, वो एक अलहदा है, और बेसिक 7,500 हमारा अलहदा है। टोटल अगर हम सेल्स अचीव करते हैं तो टोटल रकम हमारी बन जाएगी 12,500, राइट? हाँ, अच्छा। जो आपकी अटेंडेंस और बेसिक है वो आपकी टारगेट अचीवमेंट पे है। अगर आप लोग बिलेबल कंप्लीट कर लेते हो 22 फॉर एग्जांपल, तो आपका जो 12,500 है वो तो आपको मिलेगा। उसके अलावा आपके जो बिलेबल्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ एलईजे स्पेशल भी आपको मिलेगा। टोटल आपको 18,900 मिलेगा। अगर आप लोग 22 अचीव करते हो, कोई छुट्टी नहीं करते, तो आपका टोटल अर्निंग होगी 18,900। सर कभी फॉर इंस्टेंस हो जाता है कि हम 21 बना पाते हैं, तो फिर भी हमें कोई नेगोशिएशन मिलेगी? नो। अच्छा, अगर ऊपर वाले की तरफ से कोई आ जाती है इस तरह की जो है ना मिरेकल हो जाता है तो फिर हो जाएगी।
अदरवाइज अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, जी फॉर एग्जांपल हमने टारगेट है 16 पार्ट टाइम, अगर हमने 15 कर लिया तो फिर कमीशन किस तरह से? कमीशन के बाद मैं इसके बाद करूंगा। ओके सर, सॉरी। सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, थैंक यू। अच्छा सर हाँ, क्या अच्छा जी पूछे सर एक एक कर। सर अगर फुल टाइम हाँ पूछ लो। In a case scenario, if we've somehow fallen short, so would it be that we're getting nothing out of it at the end of the month? आपको पैसे मिलेंगे, आप एक सेल करेंगे तो भी आपको पैसे मिलेंगे। आपको कितने मिलेंगे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इतने करोगे तो इतने मिलेंगे, इतने करोगे तो इतने मिलेंगे, एक करोगे वो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको सबको क्लियर कर दूं, आप एक सेल करोगे, 100 करोगे, 200 करोगे, 1000 करोगे, सबके पैसे आपको मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं है जिसको अभी तक पैसे ना मिले हो उसको सेल्स के। आप लोग बेशक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं 2 साल से वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहा हूँ, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस तो अभी सिर्फ वर्क फ्रॉम होम तो अभी आया है कोरोना की वजह से, बट आई अश्योर यू हमारी पे कभी लेट नहीं होती, कभी डिले नहीं होती। इमरजेंसी सिचुएशन अलग चीज़ है, वो ऊपर वाले की तरफ से आती है, लेकिन इसके अलावा जहाँ तक मैंने 2 साल काम किया है, मुझे आज तक पे अपने टाइम पे मिली है, जितनी बताई गई है उतनी मिली है, ठीक है। तो आप एक सेल करेंगे, 1000 करेंगे, आपको सबके पैसे मिल जाएंगे। सर अगर हम एक दिन एब्सेंट होते हैं तो लाइक बाकी पूरे दिन हम प्रेजेंट होते हैं तो हमारे 2500 अगर हैं तो वो हमें हाँ मतलब तो वो कट जाएगा। उसकी वजह यह है कि अटेंडेंस बोनस आपको तभी मिलता है जब आप 100% प्रेजेंट होंगे, ओके ठीक है। अच्छा नाउ 100% सर प्रेजेंट, एक मिनट सब्र करें। नाउ 100% प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अटेंडेंस मार्क करें और इसके बाद काम ना करें। अगर आप लोग 100% काम भी करेंगे तो आपका अटेंडेंस बोनस बनेगा। अब ये नहीं है कि आप लोग काम ना करें और क्या सीन है? कर लें। क्या हो गया है भाई? यार केस ही नहीं उठा रहा बेंचोद। वो कह रहा ब्रेकेट लगानी जरूरी है। ओ भाई म्यूट कर दे यार। एंड योर लैंग्वेज यार, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। कॉलम लगाते हैं ना उसके बाद म्यूट कर दे। आसिम इधर आ जरा। म्यूट नहीं सर, किक कर दे। मैं वही कर रहा हूँ सर, यू आर रिक्वेस्टिंग मी टू अनम्यूट। सर इसको ब्लॉक कर दे। खैर we'll leave it there. अच्छा सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि फुल टाइम में जैसे आपने बताया कि टायर 1 में 22 सेल्स का होना जरूरी है, अगर 22 से अबव है उसकी, लेकिन जो टायर 2 है वहां तक वो नहीं पहुंच पाता। सॉरी हाँ अच्छा 22 का ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बेस प्लान पे काम करें तो आपके लिए ये टारगेट्स हैं, ठीक है। 22 इज अ मस्ट फॉर अ फुल टाइमर एंड 16 इज अ मस्ट फॉर अ पार्ट टाइमर। जी मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अगर 22 तो हो गई है, लेकिन जो इसमें टायर 2 में 37, लेकिन वो 37 से उसकी 1 या 2 से लेस है, तो 22 तक की उसके जो वो टारगेट माने। नहीं तो जितनी भी आपकी अवेलेबल्स होंगी ना, तो वो आपका बिलेबल पर पे आउट जो कॉलम है ना उसमें अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल आपने 22 की जगह 26 सेल्स की है तो ये 4400 की जगह चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? ये 3000 हो जाएगा, ये 3200 हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। यस बिलाल पूछे सवाल। जी थैंक यू सर।
अगर फर्स्ट 5 डेज में हम 4 सेल्स कर लेते हैं तो फिर भी हाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम कमीशन बेस्ड करते हैं या बेस प्लान जी करते जी हैं। जी जी, आपके पास ऑप्शन है। थैंक यू। रुमेसा यस, रुमेसा पूछे। हेलो। Hello, can you hear? हाँ बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। Okay. सर अगर टायर 4 से अबव हमारी सेल्स होती हैं तो वो किस में इंक्लूड होंगी? ऑलराइट, टायर 4 में अगर आप पार्ट टाइम पे काम करती हैं, लेट्स से आपने 52 एंड अबव सेल्स कर ली, तो आप बेसिकली जो पे आउट पर अवेलेबल है वो तो आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको बेस सैलरी मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द अटेंडेंस आपको अटेंडेंस बोनस मिल जाएगा, और अली डे स्पेशल बोनस आपको 6000 मिलेगा। अगर इसके ज़्यादा आपकी सेल्स हैं तो बिलेबल्स काउंट होते फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू हैव 53 सेल्स, तो आपका 10,400 की बजाय 10,600 हो जाएगा, और इसी तरह बढ़ता रहेगा। Okay, thank you sir. You're welcome. Excuse me, sir. अच्छा, let's go for the bonus plan. Yes. पूछे? सर अगर हम जो है ना पहले मंथ में अगर 22 सेल्स कर लेते हैं और नेक्स्ट मंथ में अगर हमारी 22 सेल्स पूरी नहीं होती, तो क्या हम बेस में रहेंगे या कमीशन पे रहेंगे? अच्छा, आपके पास ऑप्शन होता है चेंज करने के लिए। once you start working, पहला मंथ में once you complete your month, उसके बाद आपकी सेल्स देखी जाएंगी और वो डिसाइड करेंगी कि आप कमीशन पे हैं या बेस पे हैं। अगर आप अचीव कर लेते हो या इससे ज़्यादा कर लेते हो then you obviously will be on the base plan, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है, आपने वो पहले क्लियर करनी है। So for example, this month you did a good job and you think like you can do the same job and you can do more sales, और आप चाहते हो कि आपको कमीशन मिले, तो आपको कमीशन मिल सकता है। ठीक है? Excuse me, sir. Let's go to no more questions. अभी इसके बाद मैं करूँगा, ठीक है, सारे आंसर्स। So let's go to the commission plan. ये सारे पढ़ लें, ठीक है। Now daily payout वाला कॉलम जो है उसको गौर से पढ़ें। ट्रांसफर्स का मतलब है बिलेबल्स, ठीक है। TRX जितने भी आपकी पेमेंट होगी वो बिलेबल्स पे होगी, ठीक है। तो आपको पहले ट्रांसफर पे मिलता है 500, सेकंड ट्रांसफर पे आपको मिलता है 600। कंबाइन अगर आप लोग फॉर एग्जांपल 2 सेल्स कर लेते हैं दिन के, तो आपको मिल जाता है 1100, 3 पे मिल जाता है आपको 1700, 4 पे मिल जाता है आपको 2300, 5 पे मिल जाता है आपको 2900, 6 पे मिल जाता है आपको 3500, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। मंथली पे आउट के कॉलम में क्या बताया गया है? अगर आप रोजाना 22 दिनों के लिए, एक आइडियल मंथ में हमारे पास 22 दिन होते हैं, तो अगर आप 22 दिनों के लिए रोजाना 2 सेल्स करते हैं, तो आप लोगों के महीने की अर्निंग 24,200 होगी, ठीक है। फॉर 5 अगर आप लोग रोजाना 5 सेल्स करते हो, तो आप लोगों की टोटल अर्निंग होगी 63,800। एक और चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं, कमीशन प्लान वालों के लिए भी, चाहे वो पार्ट टाइमर है या फुल टाइमर है, जो अटेंडेंस बोनस बताया गया है वो इनके लिए भी वैलिड है। अगर ये लोग छुट्टी नहीं करते तो इनको भी अटेंडेंस बोनस मिलता है, ठीक है। और एनी क्वेश्चंस? अली जे बोनस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको कमीशन में ऑलरेडी पर सेल बहुत ज्यादा अमाउंट मिल रही है। सर क्या सर कमीशन में जो ज्यादा अमाउंट लग रही है मुझे एज कंपेयर टू बेस अर्निंग प्लान में? यप। तो फिर सर टारगेट और व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? सर बेस के लिए आपने कहा कि टारगेट भी करना है, और वो अगर शुरू के 5 डेज मैं समझ गया, मैं आपके लेट मी आंसर दिस। अच्छा, तो अब हर कोई टॉप सेल्स या
टॉप सेलर नहीं होता। हर कोई रोजाना की 5-6 सेल्स नहीं कर सकता, हर कोई रोजाना की 10 सेल्स भी नहीं कर सकता। तो जो लोग सेफ्टी, जो लोग एक खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है, आपको पहले 5 दिनों में, पहले 10 दिनों में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कितनी सेल्स कर सकते हो। ऑब्वियसली हमारी टीम यहाँ है आपको हेल्प करने के लिए, बट हर बंदे का लर्निंग कर्व भी उस तरह से नहीं होता। तो जिन लोगों की सेल्स 2 से कम होती है रोजाना के लिहाज से, अगर वो 2 से कम करते हैं तो उनके लिए बेस्ट प्लान है कि वो बेस पे रहें। और जो लोग इससे 2 या 2.5 या 3 से ज्यादा रोजाना की सेल्स कर सकते हैं तो उनके लिए बेस्ट प्लान है कि वो कमीशन पे रहें, क्योंकि इसी तरह वो पैसे बना सकते हैं। अदरवाइज अगर वो सेल्स नहीं करेंगे, दोनों सिचुएशंस में वो पैसे नहीं बना पाएंगे, चाहे वो कमीशन पे हो या बेस पे हो। सर जी सर, ये 2 सेल जरूरी डेली करनी है या एवरेज जब महीना खत्म ये मैं हो आपको तो ये बता रहा देखा हूँ, जाए? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आप करेंगे तो कितने पैसे कमाएंगे। करनी तो आपने है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब महीना खत्म होता है तो ये हिसाब लगाया जाएगा कि इस बंदे की एवरेज पर डे 2 सेल हो रही है या उसको डेली की 2 करनी ही करनी है? डेली नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप रोजाना 2 करो या रोजाना 10 करो, ठीक है। सेल्स आपने करनी है, हमारा काम है उसको कैलकुलेट करके आपको अब बताना। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 सेल्स करते हो तो वो महीने का पे आउट ये बनता है। ऑब्वियसली ऊपर नीचे होता है रोजाना, ये नहीं है कि आपने 2 लाजमी करनी है, 3 लाजमी करनी है। आप रोजाना 3 करें, 4 करें, 5 करें, जितनी भी करेंगे वो सारी एडअप हो के इन दी एंड आपके पास यही रिजल्ट्स आएंगे। सर अगर जो है वो 2 सेल करके तो हम टाइम से पहले ऑफ कर देते हैं तो फिर उसमें से 500 जो है वो हमारा डिटेक्ट होगा। बेसिकली जो आपका टाइम है, जो आपने शिफ्ट चूज की है वो आपको पूरी लाजमी है करनी, बेशक आप कितनी भी सेल्स कर ले, ठीक है। टाइम आपका लाजमी है। जो आपने एक शिफ्ट चूज किया हुआ है अपने वर्क फ्रॉम होम और जॉब के लिए, तो वो आपका पूरा करना लाजमी है। ओके सर। सर ये हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम दोनों में से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर लें। जी Sir, I have a question. Can you hear me? Yeah. Yes, Sharmeen here. Sir, according to this plan, commission earning plan, that means there is no monthly target, right? Yeah, you can earn as much as you want. उसमें भी यही है। So how come they will judge our performance? So Sorry? if somebody is not doing good, so हाँ। like ये performance को कैसे judge करेंगे? My question is this. ऊपर जो मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई ना, तो वो रोजाना भेजी जाती है कंपनी वाइड, उससे पता चलता है। हाँ। All right, और fine. आपके पास आपके टीम लीड के पास और आपकी है बीआई टीम के पास, आपकी मैनेजमेंट के पास एक सिस्टम होता है जिसमें सारी सेल्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एक सेल करते हो, आप वहाँ पे उसकी डिटेल्स डालेंगे, आपको थोड़ी देर बाद 10-12 घंटे बाद आपको वो अपडेट हो जाएगा कि उस लीड का स्टेटस क्या है, चाहे वो बिलेबल है चाहे वो बिलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो सिस्टम आप लोगों को दिए जाएंगे इन द नेक्स्ट 2 days। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि उसको यूज़ कैसे करना है। आपके पास आपकी सेल्स की डिटेल होंगी, आपके पास सारी चीज़ें होंगी, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों को ये डाउट ना हो कि अच्छा ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। एज अ कंपनी वी मेक श्योर कि आप लोग कंफर्टेबल हो और आप लोग मेहनत से काम करें, ठीक है। तो आप लोगों को बाकी चीज़ों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चीज़ें होंगी, ठीक है। अलील भाई मेरा क्वेश्चन है कि अगर कमीशन अर्निंग में फॉर एग्जांपल एक दिन पे एक बंदा 5-6 सेल कर लेता है और अगले दिन एक भी नहीं करता, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन, राइट? एक मिनट दें।
अच्छा, आपके लिए सेल्स करना रोज़ाना के लिए देखें, आप सेल्स करेंगे, आप अपने लिए सेल्स करेंगे, ठीक है, ये बात आप बिठा ले माइंड में कि सेल्स आपने करनी है अपने लिए, अपने टीम के लिए, दैट्स इट। अगर आप नहीं करेंगे तो आप लॉन्गर टर्म के लिए कंपनी का हिस्सा नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अगर आप लोग काम करेंगे, सीखेंगे और सेल्स करेंगे तो आप लोग कंपनी का हिस्सा होंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम। अदरवाइज अगर आप लोग सेल्स नहीं करेंगे तो आप लोग कंपनी का हिस्सा ज्यादा देर के लिए नहीं होंगे, ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगी कि आया आपने ये जॉब करनी भी है या नहीं करनी। एक्सक्यूज मी सर, मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स में हमने डिसाइड करना होता है कि हमने कमीशन प्लान पे रहना है या बेस प्लान पे। तो फर्स्ट वीक। ओके तो फॉर एग्जांपल हमने पहले ये डिसाइड किया कि हम कमीशन प्लान पे रहते हैं और बाद में हम चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हो लेकिन महीने पूरा होने के बाद। ओके ठीक है। इफ फॉर एग्जांपल कमीशन प्लान हमारे पास बेस प्लान से सही नहीं आ रहा, कम आ रहा है, तो फिर हम बेस प्लान पे जा सकते हैं? अगर आपकी देखें, आपके पास एक प्लान होगा जो आपके महीने का शुरू में आप कंफर्म करेंगे, वो पूरा महीना चलेगा। उसके बाद अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो आप चेंज करवा सकती हैं महीने के दूसरे महीने के शुरू में, ठीक है, सिंपल। उस महीने में नहीं कर सकते फिर? हाँ। ओके हेलो, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट है। ऑलराइट गाइस, सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर। पूछे। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर्स के नीचे 1 2, तो मतलब अगर हम मतलब दिन में अगर हम 2 सेल्स करते हैं तो हमें 1100 मिलेगा उस 2 सेल्स? जी जी। तो सर ये वैसे बेस से ज्यादा अच्छा नहीं बनता ये कमीशन? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो लोग कम सेल्स कर सकते हैं तो उनके लिए यह है कि वो एक टारगेट अचीव करके बेस पे रहें, और जो लोग ज्यादा सेल्स कर सकते हैं तो उनके लिए बेहतर है कि वो कमीशन पे रहें। सर मतलब अगर कोई 2 सेल्स कर सकता है दिन के तो वो कमीशन पर रहे? प्रोबेबली। ओके, थैंक यू। सर बेस में और ये कमीशन में सबसे बड़ा फर्क यही है ना, वो जो अली जे स्पेशल बोनस है, और उसमें यह है कि आपको एक टारगेट अचीव करना होता है। उसमें यह है कि आपने रोजाना 1 सेल करनी है और आप लोग आराम से 20,000 मतलब 20 दिन काम करोगे तो 20,000 आप कमा सकते हो। और अदरवाइज अगर आप ज़्यादा सेल्स करते हो उस पर, तो उसके पास आपके पास टारगेट्स होती हैं जो कि अचीव करनी होती है।
फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 सेल्स रोजाना करते हैं तो ये 44 सेल्स बन जाती हैं महीने की। वहाँ पे अगर आप 37 करते हो तो भी सेम अमाउंट यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे उसका 4-5 हज़ार का फ़र्क होता है। 4-5 हज़ार यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो जो लोग रिस्क नहीं लेते उनके लिए बेस प्लान ही ठीक रहता है, और जो लोग कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ 44-45 सेल्स पर मंथ, तो उनके लिए फिर ये है कि ये वाला प्लान बेहतर है। ठीक है Sir, I have a question. Yes, sir. हाँ जी। Sir, what about attendance bonus in commission earning plan? अटेंडेंस बोनस आप फुल टाइमर और पार्ट टाइमर के लिए सेम रहेगा, 2500 और 5000। Thank you, sir. Excuse me, sir. हाँ सर ये जैसे ट्रांसफर्स में लिखा हुआ है 2 ट्रांसफर्स 1100 और उसके आगे 3 लिखा हुआ है 1700, ये LPD 3 यानी कि ये किस तरह आप कर रहे हैं काउंट? अगर 1700 होगा तब जाके हम 37,400 बनाएंगे जी। अगर आप 3 पर डे करते हो तो जाके 37,400 बनता है रोजाना के हिसाब से। एवरेज आपका 3 होगा तो आप इससे ज्यादा कमा पाओगे, एवरेज आपका 4 होगा तो आप इससे ज्यादा कमा पाओगे, 5 होगा तो इससे ज्यादा होगा, और 6 होगा तो इससे ज्यादा होगा। अच्छा सर एक और चीज़ बताइएगा, जो कॉल्स होंगी वो आपके एंड से क्यों की जाएंगी या हम लोग खुद ही ऑपरेट कर रहे होंगे? यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ वो सलमान आपको कि बता देगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो ट्रेनिंग आपको मिल अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। सर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फर्स्ट डे 2 सेल नहीं की और नेक्स्ट डे कर ले तो फिर इसका बता दें। दैट्स ऑलराइट, इसी तरह ही होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर I'd like to know कि ये जो हमारा पहले वीक का काम होगा इस पे पे आउट मिलेगा? हाँ हर चीज का पे आउट मिलेगा, और एक सेल भी दूसरा ये करेंगे कि जब भी by default हम करेंगे कौन से आपको plan पे पे आउट मिलेंगे। नहीं अभी आप किसी प्लान पे नहीं है, अभी आप लोग ग्रेजुएट करेंगे और पहले 5 दिनों के बाद आपको बता दिया जाएगा। आप पहले 5 दिनों के बाद आप खुद भी डिसाइड करेंगे और हम भी आपको बता देंगे कि आपका प्लान ये बनना चाह रहा है, ये बन रहा है, क्या आप इस पर रहना चाह रहे हैं या आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कंफर्म कर देंगे और पूरा महीना वो प्लान चलेगा फिर। Sir, what if we totally leave it on the company that they decide in which criteria we fall, that commission earning plan तो or base अच्छा earning अच्छा plan तो after अगर the आपके trial? अच्छा तो अगर आप फुल टाइमर है तो 22 से अगर आपकी कम होंगी तो हम आपको कमीशन पे डाल देंगे। I'm a part timer. अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो अगर आपकी 16 से कम होंगी तो हम आपको कमीशन पे डाल देंगे ऑटोमेटिकली। All right, thanks. यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर हमारी बेस प्लान में 16 से कम सेल्स होती हैं तो उसमें हमें हमारी बेसिक और वो अली जे वगैरह इंक्लूड है या नहीं? नहीं वो अगर आपका जो गिवन टारगेट है वो अचीव नहीं करते तो वो फिर आपको कमीशन प्लान पे सिर्फ आएंगे। उसमें सिर्फ ये है कि आपको अटेंडेंस बोनस मिलेगा और जितनी सेल्स की हैं उसकी अमाउंट मिलेगी। ठीक, थैंक यू। हाँ सर एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर जैसा कि आपने बताया है कि अभी के अचीवमेंट पे आपको कमीशन पे यानी कि वो कन्वर्ट कर देंगे, तो सर ये ऑटोमेटिकली कर देंगे कंपनी वाले कि हमें करना पड़ेगा? अच्छा मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपके पास ऑप्शन होती है महीने के शुरू में या जब आप पहले 5 दिनों के बाद आप डिसाइड करोगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा अगर आप लोग 16 या 22 अचीव नहीं करते फॉर अ फुल टाइमर एंड अ पार्ट टाइमर, फॉर अ फुल टाइमर 22 है, फॉर अ पार्ट टाइमर 16 है, अगर इससे आपकी सेल्स कम होती हैं तो हम आपको कमीशन पे डाल देंगे। ठीक है, अगर आप ज्यादा सेल्स कर सकते हैं तो यू जस्ट हैव टू लेट अस नो कि मैं ज्यादा सेल कर सकता हूं, मैंने कमीशन पे जाना है, दैट्स इट। सर ये चीज़ पूछनी थी कि ये जो 2 टेबल्स हैं साउंड पोर्ट और मंथली पे आउट के, तो ये ट्रांसफर और एलपीडी में कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स बिलेबल सेम एज इन के। अच्छा एक बात आप याद रख लें, सारे माइंड में बिठा लें कि जितनी भी ट्रांसफर्स आप करेंगे और उनके आपको पैसे मिलेंगे वो सारी बिलेबल ट्रांसफर्स कहलाती हैं। और बिलेबल ट्रांसफर्स क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इसके आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे पैसों की ट्रांसफर या पैसों की बात जहाँ पे भी होगी वहाँ पे हम
बिलेबल ट्रांसफर की बात कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सबको स्क्रीन पे एक ब्लू रिपोर्ट नजर आ रही है? दिस इज कॉल्ड अ वर्क 360 रिपोर्ट। दिस इज कॉल्ड अ वर्क 360 रिपोर्ट। ये आपको आपकी टोटल अर्निंग रोजाना के हिसाब से बताता है कि आज आपने कितनी अर्निंग की है। सो ये तहरीम अशरफ 2 आईडी से क्यों लॉगिन कर रहा है? मैं एनीवेज, फर्स्ट कॉलम में आपका नाम, सेकंड में आपकी CRM आईडी, एम्प्लॉय आईडी कहते हैं हम इसको, थर्ड में आपका टीम नेम होता है, कैंपेन नेम होता है, फोर्थ आपका अपॉइंटमेंट डेट कि आप कब कंपनी ज्वाइन किया आपने, टेन्योर कि आपने कितना टाइम गुजार लिया है, उसके बाद आपकी आती है FETRX, उसका मतलब ये है कि आपने फाइनल एक्सपेंस पे कितनी सेल्स की हैं, HLTTRX इट मींस कि आपने हेल्थ पे कितनी ट्रांसफर्स की हैं, FE पे आउट कि आपके FE के जो ट्रांसफर्स हैं उन्होंने कितने पैसे जनरेट किए, और आपके जो हेल्थ के ट्रांसफर्स हैं उन्होंने कितने पैसे जनरेट किए, टोटल ट्रांसफर्स आपकी कितनी हैं, और टोटल पे आउट उस दिन का आपका कितना है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 28 अक्टूबर लिखा हुआ है तो उसका टोटल पे आउट कितना है। जो आखिर में टोटल का कॉलम है ये आपको बताता है कि आपने पूरे महीने में अभी तक कितनी ट्रांसफर्स की हैं और कितनी सैलरी आपकी अभी तक बनी है। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Awesome. Yes, sir. Amazing. ठीक है, so let's move on to the attendance report. Now, attendance report में again, first of all, it is your name. In the second column, you have your employee ID. Third is your team name. Fourth is your manager name. 5 आपका shift किस time शुरू होता है. In the fifth column, we have check-in. तो आप किस time login करते हो अपना. Now, अटेंडेंस स्टेटस में आपको ये बता दिया जाता है कि आया आप लेट थे, अर्ली थे या एब्सेंट थे. MTD लेट काउंट आप बिलो इन द सेकंड टेबल, वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि MTD लेट काउंट में क्या आप महीने में कितनी दफ़ा लेट आए हैं. MTD लीव काउंट आपको बताती है कि कितने अप्रूव्ड लीव्स हैं आपके. MTD एब्सेंट काउंट आपको बताता है कि आपके अनअप्रूव्ड कितनी लीव्स हैं. MTD ऑन टाइम ये वो काउंट है जब आप लोगों को फॉर एग्जांपल शिफ्ट शुरू होता है 6 बजे और आप लोग 6 बजे लॉग इन करो, सो दिस इज योर ऑन टाइम काउंट, जब आप लोग ऑन टाइम अपनी अटेंडेंस लगाते हैं. यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि आपका जो ऑन टाइम काउंट है दैट इज़ अ लेट. आपने एग्जैक्टली शिफ्ट स्टार्ट के टाइम पे लॉग इन नहीं करना है, आपने उससे पहले लॉग इन करना है. 1 मिनट पहले करें, 2 मिनट के पहले करें, 3 मिनट पहले करें, 5 मिनट पहले करें, 10 मिनट पहले करें, 20 मिनट पहले करें. ठीक है, आपने चेक इन हमेशा आपके शिफ्ट स्टार्ट टाइम से पहले करना है. अगर आप उसी टाइम लॉग इन करेंगे तो ये आपका लेट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो हमारा शिफ्ट स्टार्ट टाइम होता है उस पर आपकी मीटिंग शुरू हो जाती है, तो उससे 2 मिनट लाजमी पहले आपने लॉग इन करके एक्टिव होना है. MTD अर्ली काउंट कि आप महीने में कितनी दफ़ा जल्दी आए हैं. लेट डिडक्शंस कि आपके महीने के कितने पैसे लेट आने की वजह से काट दिए गए हैं. ऑन टाइम परसेंटेज क्या है और अटेंडेंस परसेंटेज क्या है. ऑन टाइम परसेंटेज मीन्स कि आप टाइम पे कितनी दफ़ा आए हैं, और 100% आपका आपका अटेंडेंस परसेंटेज क्या है कि आप महीने में कितनी दफ़ा मतलब कि आपने छुट्टी कोई की है या नहीं की है. तो ये आपको परसेंटेज बता रहा है. नाउ आप लोग सारे घर से काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो आप लोग की अब तो लेट हो ही नहीं सकते. बस घर पे आपने लॉग इन करना है, सिस्टम ओपन करना है और लॉग इन करना है. जब एक बंदे ने ऑफिस आना होता है तो उसके लिए कभी बाइक ख़राब होगा, कभी गाड़ी ख़राब होगी, कभी लेट हो रहा होगा, कभी रश होगा, कभी जो है ना प्राइम मिनिस्टर आ रहा होगा. तो सारे तरह के मुश्किलात होती हैं जिसकी वजह से वो ऑफिस से लेट हो जाता है. लेकिन घर में बैठे बैठे आपके लिए ईजी है कि आप लोग
आराम से लॉग इन कर सकते हो। तो होपफुली कोई लेट नहीं होगा। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं तो गो अहेड एंड आस्क। ये सबको समझ आ गया? यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर। सर अगर हम अपने एचआर से पूछ के एक दिन लीव करते हैं तो वो इसमें काउंट होगा? अगर हम लीव करते, एक दिन छुट्टी करते हैं एचआर से पूछ के, तो उसमें लेट डिडक्शन तो नहीं होगी या फिर कोई डिडक्शन? लीव में लेट डिडक्शन नहीं होगी। लीव में आपका अटेंडेंस बोनस जो है ना वो चला जाता है। अच्छा, और मैक्सिमम कितनी लीव कर सकते हैं सर महीने में? सर आपने एचआर सेशन अटेंड किया था? जी किया था सर। उसमें आपको बता दिया जाता है। आप एचआर को प्लीज काइंडली रीच आउट करें ताकि वो आपको दोबारा से बता दें कि आपकी टोटल लीव्स आप कितनी कर सकते हैं। ओके सर। सर ये पूछना था कि जैसे 100% अटेंडेंस है बट ये ऑन टाइम 44% है, तो इस पे बोनस कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? ऑलराइट, अगर आप लेट आएंगे तो आपके 500 रुपये काट दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपका अटेंडेंस बोनस काट दिया जाता है। सर पूछना ये था कि लेट आया बट अटेंडेंस 100% है तो बोनस बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि आपने छुट्टी तो नहीं की है ना। मैंने छुट्टी की बात की है। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपका अटेंडेंस बोनस खत्म हो जाता है। ठीक है जी, लाइबा पूछें। हेलो, all right, okay, so all good, all right, thank you so much guys। अगर कोई सवाल है किसी का बीआई सेशन से रिलेटेड तो पूछें। सर माशाल्लाह समझ आ गई सबको? यस सर, थैंक यू। यस सर। जी सर, आ गई। यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आखिर में थोड़ी मोटिवेशन सलमान, मोटिवेशन में ये देना चाहूँगा आप लोगों के, आप लोगों का काम है काम करना। कायद आज़म का फरमान है काम काम और काम, तो बस उसी पे चलते रहे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे आप। और क्या कह सकता हूँ? हाँ, थैंक यू सर। सलमान भाई, नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आई एम डन। बताएं। ऑलराइट, तो सलमान भाई कह रहे हैं कि आप लोग ब्रेक पे चले जाएं और आप लोग मैक्सिमम 11:35 से कोई भी बंदा लेट ना हो। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। Okay. I must say You're thank you welcome. so much. Okay sir, thank you so टाइम much एक दफा sir.